अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मैं कांग्रेस पार्टी के प्रांगण में आज स्वागत करता हूं। आदरणीय खड़गे साहब और मैं एक विशेष विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। From year 217 onwards, democracy has been hijacked. And the buck now stops at the door of none less than Prime Minister Shri Narendra Modi. Friends, the shocking and new expose in an international publication has now established what Indian National Congress always maintained. And that was that Modi government is deployer and executor of the illegal and unconstitutional spying and snooping racket through Israeli surveillance spyware Pegasus. And the Prime Minister, Shri Narendra Modi, is himself involved. This is a brazen hijack of democracy and an act of treason. 5 damning truths are now clear. Number 1. Modi government purchased Pegasus spyware in the year 2017, along with other military technologies, as the centerpiece of a package, including weapons and intelligence gear worth roughly $2 billion American from Israel during Prime Minister Modi's visit. It is no coincidence that the budget of National Security Council Secretariat, which reports to NSA, suddenly went up from 33 crore to 333 crore in the year 2017. Number 2, needless to add that the Pegasus spyware not only breaches the WhatsApp as also the cell phone itself, but is able to turn on the cell phone camera and microphone without the owner's knowledge to record all activities in the vicinity of the phone, besides hacking all the security features of the cell phone, including listening to every conversation, sending passwords, contact lists, calendar events, text messages, surreptitiously and secretly to the spying agency, and listen and record all live voice calls. Not only this illegal and unconstitutional spyware is also able to plant incriminating material without the knowledge of owner of the phone in order to indict an individual. This is what it does. Modi government deployed this Pegasus spyware for snooping and spying upon Shri Rahul Gandhi and 5 members of his staff, former Prime Minister Shri Deve Gowda, former Chief Ministers Shri Siddaramaiah, as also Shri Kumaraswamy, former BJP Chief Minister Shrimati Vasundhara Raje Scindia, BJP Cabinet Minister Shri Prahlad Singh Patel, his wife and staff members, present IT Minister Shri Ashwani Vaishnav and his wife, OSD of Union Minister Shrimati Smriti Irani, Abhishek Banerjee, Member of Parliament and nephew of Ms. Mamta Banerjee, former head of Vishwa Hindu Parishad Shri Praveen Togadia, and many others. Not only this Pegasus spyware was also deployed illegally against Supreme Court judges, Election Commission of India, including Shri Ashok Lavasa, CBI Director, the then CBI Director Alok Verma and his wife and children and daughter-in-law, KK Sharma, head of Border Security Force, BSF IG Jagdish Mehthani, RAW officer Jitendra Kumar Ojha and his wife, Indian Army officers Colonel Mukul Dev and Colonel Amit Kumar, they were all targeted by Pegasus. The Pegasus spyware target list also includes advocates, activists, and even some of you journalist friends, including those belonging to various media organizations, The Hindu, The Indian Express, The Hindustan Times, India Today, The Mint,
The Wire, Economic and Political Weekly, TV18 Network, The Tribune, Outlook, DNA, NewsClick, Frontier TV, and the list goes on. 3. Modi government duped and deceived the Indian Parliament. The IT Minister Ashwani Vaishnav attacked the reports of the media on deployment of Pegasus spyware as baseless and highly sensational, and issued in fact a PIB release. I'm sending this to you. The Home Minister Shri Amit Shah and Ministry of Home Affairs, they also deceived the people of India by denying the purchase of Pegasus in an RTI query. I'm sending this to you. The Defense Minister and the Defense Ministry on the floor of the Parliament once again deceived Parliament and people of India by saying, we have had no dealings with NSO. I'm sending this to you. Fourthly, Modi government also deceived the Supreme Court of India. They misled the Supreme Court. When directly questioned about the purchase and deployment of Pegasus spyware, in a sworn affidavit, the Government of India, represented through the Ministry of Electronics and Information Technology, claimed to, and I quote, unequivocally deny any and all of the allegations made against the government, unquote. The copy of the affidavit is right here. I'm sending it to you. This is the Supreme Court affidavit. Fifthly, the Bharatiya Janata Party machinery, they engaged in a massive and coordinated strategy to dupe and betray the Indian public. Home Minister Amit Shah even went a step further and deployed the usual strategy of false propaganda on the Pegasus by saying that this is, and I quote, a report by disruptors for the obstructors. This is what he said. And I'm sending this also to you. Minister Ravi Shankar Prasad, he claimed that the report of deployment of illegal and unconstitutional software against Supreme Court judges, against the paramilitary forces, against Indian Army officers, against raw officers, against Election Commission of India, against journalists, against opposition leaders. And he said, this is a revenge for the way India handled COVID. Friends, it is now clear that Modi government, led by Prime Minister Shri Narendra Modi himself, number one, purchased the illegal and unconstitutional Pegasus spyware. Number two, duped the Parliament. Number three, misled the Supreme Court. Number four, used public money, used public treasury to illegally purchase and spy upon its own people. Number five, hijacked the democracy in the run-up to the 2019 Parliament elections. And number six, committed an act of treason. That's the truth. इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं आदरणीय विपक्ष के नेता खड़गे साहब को, मैं बहुत संक्षिप्त में यह कहूंगा कि साथियों, अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। 5 सत्य अब सामने हैं। नंबर 1, मोदी सरकार ने साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तो इजराइल से जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा उसके सेंटर पीस में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर था और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसकी खरीद की गई। शायद यह भी संयोग नहीं प्रयोग है या प्रयोग नहीं संयोग है
कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काउंसिल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करती है, उसका बजट भी यकायक 33 करोड़ से बढ़कर साल 2017 में 333 करोड़ हो गया। दूसरा सत्य, पिगैसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह गैर कानूनी तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी या इजाजत के बगैर आपके सेल फोन को, देश के नागरिकों, यह हैक करता है, व्हाट्सएप को भी और सेल फोन को भी। आपके माइक्रोफोन और कैमरा दोनों को कैप्चर कर लेता है और फोन ऑन हो या बंद हो, उसके चारों तरफ जो बात हो रही है उसकी फोटो और उसकी वार्तालाप, ये गुप्त तरीके से सेल फोन के मालिक की जानकारी के बगैर मोदी जी की एजेंसियों को भेजता है। आपके सेल फोन में जो जानकारी है, आपके परिवार की फोटो हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपके एसएमएस हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज हैं, आपके कैलेंडर है, आपने जो जानकारी भी फोन पर रखी है उसे चोरी करके मोदी सरकार को भेजता है। यही नहीं, आपकी जानकारी के बगैर सेल फोन में कोई भी जानकारी जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है उसे गुप्त तरीके से चोर दरवाजे से अंदर डाल देता है, ताकि फिर सेल फोन के मालिक से वो बरामद हो और उसकी सजा हो जाए। ये करता है ये पिगैसस स्पाईवेयर। और इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया गया? राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ के 5 लोगों के खिलाफ। इसका इस्तेमाल किया गया पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, कुमार स्वामी जी, भाजपा की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ, भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, मौजूदा आईटी मंत्री वैष्णव जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, प्रवीण तोगड़िया जी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जी के ओएसडी के खिलाफ, और न जाने और किस किस के खिलाफ। और यही नहीं, इस जासूसी सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे और बेटे की धर्मपत्नी के खिलाफ, भारतीय बीएसएफ के हेड के शर्मा जी के खिलाफ, बीएसएफ के आईजी जगदीश मेथानी जी के खिलाफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू के अफसर जितेंद्र कुमार ओझा और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, हिंदुस्तान की फौज के अफसरों कर्नल मुकुल देव और अमित कुमार के खिलाफ, और वकीलों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ और मीडिया संस्थानों के खिलाफ। और उनके नाम बड़े रुचिकर हैं, द हिंदू के खिलाफ, इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ, हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों के खिलाफ, इंडिया टुडे के लोगों के खिलाफ, टीवी 18 नेटवर्क के लोगों के खिलाफ, ट्रिब्यून के लोगों के खिलाफ, मिंट के लोगों के खिलाफ, वायर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के लोगों के खिलाफ, आउटलुक और डीएनए के लोगों के खिलाफ, न्यूज क्लिक और फ्रंटियर टीवी के लोगों के खिलाफ, और न जाने किस किस के खिलाफ। और मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को धोखा दिया। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने यह कहा कि इस प्रकार के किसी सॉफ्टवेयर की खरीद की उनको जानकारी नहीं, मैं वो कागजात आपको भेज रहा हूं। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने देश के धोखा दिया। आरटीआई के एक जवाब में कहा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद को धोखा दिया। उन्होंने कहा हमने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। और यही नहीं, मोदी सरकार ने देश की संसद को धोखा दिया। शपथ पत्र देकर कहा कि हमने ये सारे जो इल्जामात लग रहे हैं सरकार के खिलाफ कि उन्होंने सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर सारे देश की जासूसी कर डाली, ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। साथियों, अब 6 बातें साफ हैं कि पिगैसस जासूसी यंत्र देश की सरकार के पैसे से गुपचुप और चोरी के तरीके से खरीदा गया प्रधानमंत्री जी की नॉलेज के साथ। नंबर 1, भारत सरकार ने पिगैसस जासूसी यंत्र खरीदा। नंबर 2, संसद से धोखा किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा। नंबर 4, सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता की जासूसी के लिए किया। नंबर 5, प्रजातंत्र का अपहरण किया 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय। और नंबर 6, देशद्रोह किया। ये सच्चाई है।
मैं खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आपको अपनी बात कहेंगे। आदरणीय खड़गे साहब। मीडिया के मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में हमारे जनरल सेक्रेटरी और मीडिया के चेयरमैन सारी चीजें सुरजीवाला साहब ने बताई है। अब मुझे और ज्यादा कहने का कोई यहाँ पर मौका नहीं है। ऐसा हुआ कि बफे सिस्टम में जब हम जाते हैं तो पहले जो लाइन में रहते हैं उनको जरा अच्छा खाना मिलता है और सब चीजें मिलती हैं। तो मेरा नंबर अब आया है, लेकिन मेरे थोड़े से पॉइंट्स अलग है। जो अभी सुरजेवाला साहब ने आपके सामने मुद्दे रखे, ये मुद्दे हम बार बार पार्लियामेंट में उठाते रहे और इन मुद्दों के ऊपर ही हम एक पूरा मानसून सेशन लड़ते लड़ते खोया। उस वक्त बहुत से लोग हमारे ऊपर टीका टिप्पणी की कि भाई जब पार्लियामेंट चलती है, हाँ, तो जब पार्लियामेंट चलता है तो ये लोग चलाने नहीं देते और पार्लियामेंट में कुछ अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं। तो ये जो बातें हमको उस वक्त सुनना पड़ा और मीडिया की भी टीका टिप्पणी हम पे हो गई, बहुत से नेताओं का भी हो गया। लेकिन असल बात ये थी कि हम ये चाहते थे कि देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। उसके तहत हम अपने बातों को कहीं भी रख सकते, या मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू या पार्लियामेंट में, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और प्राइवेसी भी है। लेकिन ये हमारी प्राइवेसी भी मोदी सरकार ने छीनने की पूरी कोशिश की और छीन भी ली, क्योंकि बहुत से नाम जो सुरजेवाला साहब ने आपके सामने पढ़े हैं, तो बड़े बड़े नेताओं के और जहां जहां इलेक्शन चल रहे थे, खासकर उस एरिया के नेताओं को भी उन्होंने डे टू डे क्या चलता है इसका उन्होंने जायजा लेने के लिए ये किया। जब हमने ये पूछा भाई पेगासस से महत्व का मुद्दा है, इसको चर्चा करो, वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब यही है वो देश से कुछ छुपाना चाहते थे, जनता से छुपाना चाहते थे। और मैं आपको आज तो बताए है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स 28 जनवरी 2022 का पूरा रिपोर्ट है कि किस ढंग से ये पेगासस खरीदी किया जाता है और किस ढंग से मोदी जी भी वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को मिले और बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यहां जब आए वो बातचीत करके, जैसा कि इवन बजट भी वो पेगासस स्पाईवेयर खरीदने के लिए उन्होंने बजट भी बीच में बढ़ाया। लेकिन हम जो ये प्रश्न पूछे, अनस्टार्ड क्वेश्चन, एक तो आरटीए आपका होगा किया, अनस्टार्ड क्वेश्चन 9 अगस्त 2021, इसमें यह पूछा गया कि विल द डिफेंस मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट ए टोटल बजटरी अलोकेशन टू द मिनिस्ट्री इन फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 19, 20, 20, 21। तब उन्होंने, इसकी कॉपी भी हम देंगे, उन्होंने ये कहा और उसमें हमने ये भी स्पेसिफिकली पूछा था, यानी एक शिवदासन जी डॉक्टर पूछे थे, whether government had carried out any transaction with the NSO Group Technologies, and if so, the details.
ये डिटेल्स उन्होंने उस वक्त अनस्टार्ड क्वेश्चन को पार्लियामेंट में दिया। उस वक्त उन्होंने यही कहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज नॉट हैड एनी ट्रांजैक्शन विथ एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज। तो ये कौन झूठ है आप देखिए। तो ये चीजें पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई खरीदा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स दूसरे इसमें खुल के आ रहे हैं कि इन्होंने उसको खरीदा। और खासकर हमारे मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस और जो लोग सरकार के जो खामियां निकालते हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने ये काम किया, जासूसी करने का। तो ये जो पैसा है जनता का है, बजट जो हम बनाते हैं, लेते हैं, जनता के से टैक्स वसूल करके लेते हैं, चाहे वो जीएसटी से हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे और कुछ हो। ये खून पसीने का पैसा हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और ये लोग लोगों की जासूसी करने में इतना पैसा खर्च करते हैं। जैसा कि आपने कहा 33 करोड़ रुपए से 330 करोड़ रुपए बन गया। और ये जो बातें हैं, और ये प्रधानमंत्री जी ये जो जासूसी सबके पीछे कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जासूसी करने के लिए ही ये बैठे हैं। अरे कोई देश के खिलाफ कुछ हो रहा है या देश के रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन यह सिविलियंस को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, प्रेस को और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ भी राहुल गांधी जी का जैसा, राहुल गांधी जी और उनके स्टाफ मेंबर्स, देवेगौड़ा तो पाप बेचारे परसों ही मिले थे मोदी साहब से, तो उनका भी किया गया। तो इसका मतलब है, और उनके मिनिस्टर्स का भी किया गया। तो किसी को छोड़ते नहीं। मुझे मालूम नहीं फिर शाह का भी नाम उसमें है कि नहीं, क्योंकि जब प्रहलाद मिनिस्टर है, प्रहलाद पटेल, उनका नाम जब है तो हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिर अलग इंफॉर्मेशन वो अपने जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट है जो उनसे लेते होंगे, मालूम नहीं, क्योंकि वो एक बात जिनसे करते हैं दूसरों से फिर वो बात शेयर नहीं कर लेते, उनकी एक खूबी है। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला और उसके बाद में इसको पुष्टि देने के लिए हम ये बार बार कह रहे थे कि इन्होंने जासूसी की, खरीदी, इसीलिए हम ये हाउस में उठाए। उस वक्त बहुत से लोग इसको लाइटली लिए, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स में डिटेल है, डिफेमेशन केस डालो बोलो उनके खिलाफ। अगर हिम्मत है सरकार में तो डालने दो, भाई ये झूठ है, तुम कैसा, क्योंकि हम खुद तो बोले पार्लियामेंट में, हम तो जनता से चुन के आए हुए नुमाइंदे जब पूछ रहे हैं तो हमको आपने ऐसा कहा कि कुछ नहीं, उसमें एक नो ट्रांजैक्शन नथिंग। तो ये जो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बाकी के पॉइंट्स उन्होंने हमारे सुरजीवाला साहब ने बोल दिया है, उसको जोड़ते हुए वो पॉइंट्स भी मेरे समझ के मैं उसको आगे बढ़ाते हुए इन पॉइंट्स को मैं यही कह रहा हूं कि जो पेगासस के बारे में झूठ बोला गया और इसके लिए तो राहुल गांधी जी लड़ते रहे, उन्होंने पहले उठाया और उठाने के बाद भी इसको हम एक मूवमेंट के तरह लिए और पार्लियामेंट के बाहर बैठे, तो ये सब काम उस वक्त हुआ। आज ये प्रूव हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी बोल रही थी वो सत्य था, जो अपोजिशन पार्टियां हमारे साथ दी इस बात के ऊपर वो सत्य था, और सत्यता बाहर निकली है। कम से कम इसके ऊपर अब कौन सी जांच होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये
इसकी सोच आगे हम देखेंगे, लेकिन हमने पहले से भी उसको पार्लियामेंट में इसको कमेटी बनाना नहीं करना इसके बारे में हमने कहा था, तो उस वक्त तो उन्होंने नकार दिया, झूठ है बोला, इसको तो उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया और पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। ठीक है, तो सारी चीजें पार्लियामेंट में आ रही है, वहां भी फिर इसके बारे में हम रखेंगे। Thank you, sir. Any questions that you have on that? We'll begin with you. I'll come to you. Thank you. Ma'am, two things are very clear now. Number one, that Parliament was deceived by Modi government. It is also clear that Supreme Court was also duped by Modi government. It is also clear that people of India were lied to by the Modi government and its ministers. These three things being very, very clear now, the role of the Prime Minister and his responsibility is now directly in question. Yes, Khadge Sahab has said, we will seek accountability of the Prime Minister on the floor of the Parliament. We will seek accountability of the government and the Prime Minister in People's Court. And we will urge upon the Supreme Court to suo motu now take note and issue appropriate penal proceedings against this government for attempting to deliberately and knowingly deceive the Honorable Supreme Court. So this is a three-pronged battle now. We will seek accountability of the Prime Minister on the floor of the Parliament and his government. We will seek accountability of Bharatiya Janata Party and Modi government in People's Court. And we urge upon the Honorable Supreme Court. It is nothing short of perjury, deception of the courts, knowing fully well that the facts that you are stating are wrong, is a criminal offense. So it's treason, it's hijack of democracy, and it's a systematic deception and an attack on fundamental right of privacy and dismantling of national security, considering who all were spied upon illegally and unconstitutionally by this government. Yes, sir. Not as per the statement. In his statement himself, he said that there is no purchase, nothing. So it is their statement. What we will do, because we have to take other political parties also in confidence, and after that, further action will be taken. Pardon? आदरणीय साथी, तीन बातें बिल्कुल साफ हैं। नंबर एक, मोदी सरकार ने संसद से धोखा किया, झूठ बोला। नंबर दो, मोदी सरकार के मंत्रियों ने आरटीआई हो, संसद के बाहर हो, देश के लोगों से झूठ बोला, खिलवाड़ किया। और नंबर तीन, देश की सुप्रीम कोर्ट की आंख पर जानबूझकर झूठ की पट्टी बांधी और सुप्रीम कोर्ट को झूठा शपथ पत्र दिया गया। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न है, विपक्ष के नेता आदरणीय खड़गे साहब कांग्रेस के सब सांसद गणों से, विपक्ष के सब नेताओं से इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और संसदीय रणनीति का खुलासा हम अगले 2 दिन के बाद आपको करेंगे। पर तीन बातें बिल्कुल साफ हैं। नंबर एक, देश की संसद को बरगलाया गया, देश की सुप्रीम कोर्ट की आंख पर झूठ की पट्टी बांधने का सरकार द्वारा घिनौना प्रयास किया गया और देश की जनता के पैसे से देश की जनता की जासूसी करवाई गई। तो हम इसे तीनों फोरम्स पर लड़ेंगे। जी,
आदरणीय साथी खड़गे साहब इसका जवाब दे चुके। अब मामला सीधा है। प्रजातंत्र का अपहरण हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद, से पहले और उसके बाद प्रजातंत्र को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया। देश के साथ मोदी सरकार ने देशद्रोह किया। जिम्मेवारी अब सीधे प्रधानमंत्री जी की ड्योढ़ी पर आ टिकी है। ये तीन बातें साबित हो गई। इसके बाद विपक्ष के सभी नेताओं से मंत्रणा करेंगे आदरणीय खड़गे साहब। कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के सांसदों से चर्चा होगी और अगली रणनीति का खुलासा जैसे ही संसद शुरू होगी माननीय विपक्ष के नेता और अन्य विपक्षी नेतागण आपके समक्ष रखेंगे। ये सब मेरे मित्र, मैं केवल आपसे, और आप नौजवान हैं, युवा हैं, इस देश के विकास के बढ़ते हुए कदमों के सूचक हैं, पत्रकार के साथ साथ मैं आपके माध्यम से इस देश के नौजवानों से कहूंगा, क्या इस देश में हमारे नौजवान भाई बहनों को, बेटे बेटियों को अब प्राइवेसी का, निजता का अधिकार नहीं रहा? मोदी साहब जहां चाहेंगे, जिसकी चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, बेडरूम में, बाथरूम में जासूसी करवाएंगे और हम उसे स्वीकार करते जाएंगे? क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निजता का अधिकार छीन लिया गया है? क्या इस देश में इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के नेताओं की निजता का अधिकार अब छीन लिया गया है? क्या इस देश में एडवोकेट, एक्टिविस्ट और पत्रकारों को अब कोई अधिकार नहीं बचा है? क्या यह प्रजातंत्र का अपहरण केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का मुद्दा हो सकता है? यह दलों का मुद्दा है ही नहीं। इस देश में प्रजातंत्र बचेगा या प्रजातंत्र का हनन हो जाएगा, हत्या हो जाएगी। अब यह है मुद्दा। मुद्दा यह नहीं कि अमुक पार्टी उठा रही है और अमुक पार्टी नहीं उठा रही। हर व्यक्ति जो इस देश के प्रजातंत्र और संविधान में विश्वास रखता है, वो राजनीति में हो या राजनीति में नहीं हो, यह आपकी जिंदगी पर हमला है, यह आपकी निजता पर हमला है, यह आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपकी मां, आपके ऊपर हमला है, जो मोदी सरकार बोल रही है। इसलिए हर व्यक्ति को इस देश के 140 करोड़ लोगों में निर्णय करना पड़ेगा कि वो उनकी जिंदगी पर उन्हीं के पैसे से, चोरी से जो सरकार हमला बोल रही है, उससे जवाबदेही प्रधानमंत्री और सरकार से मांगेंगे या नहीं। यह एक ऐसा विषय है जिसमें हर राजनीतिक दल को, कांग्रेस के चाहे वो विरोध में हो या पक्ष में हो, सबको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही वक्त की मांग है। धन्यवाद।